تو اصلی میں جو ویلنٹائنس تھا نا، یہ ویلنٹائن یعنی کہ سب کو جوڑتا تھا، محبت کے عہد میں باندھتا تھا، ایک رشتے میں باندھتا تھا، محبت کے رشتے سے تیرے لیے جیل ہے کیا۔ اگلے دن میں آپ کو اس کو 100 باری سنا دو، کیا میں تیرے واسطے وہ لے کے آیا سا، تو دیکھیا نہیں، اگر میں فرشتوں سے زبانیں بولوں اور میں اپنے بھائی سے محبت، ابھی بات آگئی محبت کی، ریلیشن شپ لائک ایل، کیونکہ کلام کہتا ہے باپ نے ایسی محبت کی اور اپنا بیٹا بخش دیا۔ محبت دائمی ہے، محبت کو باہر لے کے جانا، 4 لوگوں سے بکھانا شیخی نہیں، تو ہمیں بھی یسوع کی محبت کی طرف جانے سے پہلے ہمیں پانی میں سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے، ہمیں بھی یسوع کی محبت کی طرف جانے سے پہلے ہمیں پانی میں سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے۔ ہمیں پانی بھرے گی تو کیا یہی دلہن ہے۔ ہاللیلویہ، آئے تعظیماً سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے۔ میں بہن سے درخواست کرتا ہوں کہ کلام مقدس کی تلاوت میں رہنمائی کریں۔ آج کا کلام مقدس میں سے پہلا کرنتھیوں 13 باب 4 سے 7 آئے۔ محبت صبر ہے اور مہربان، محبت حسرت نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ آمین۔ زمین کی کان پر آمین آمین، سب بیٹھ سکتے ہیں۔ پریز جیسس۔ سب کو آئیڈیا تو ہو ہی گیا ہوگا کہ کلام کس پہ، کیونکہ ورس مکمل طور پر ہمیں بتا رہی ہے محبت کے بارے میں، تو سب کو آئیڈیا ہو گیا کہ تو آج کا ٹاپک بھی محبت کے بارے میں۔ 2 دن پہلے ایک ڈیٹ گزری، تو جب میں نے وہ ڈیٹ پر غور کیا تو مطلب سارے 14 فروری کو ایسے جوش خروش سے منا رہے۔ جب میں نے پھر اس پہ اسٹڈی کیا کہ what is this ویلنٹائن، یہ کیا ہے، مطلب یہ ویلنٹائن ہم منا تو رہے ہیں لیکن یہ اصلی ویلنٹائن ہے کیا؟ اگر ہم منا رہے تو کیا یہ ہم صحیح کر رہے ہیں، یا اگر ہم نہیں منا رہے تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ تو اصلی میں جو ویلنٹائنس تھا نا، یہ ویلنٹائن نہیں تھا، یہ سینٹ ویلنٹائن تھا۔ سینٹ ویلنٹائن یہ ایک آدمی تھا، کہتے ہیں کہ ایک پاسٹر پریچ ٹائپ کا کچھ شخص تھا۔ تو روم میں ایک راجا تھا کلوڈیس نام کا، روم کا راجا تھا کلوڈیس۔ اب وہ کلوڈیس راجا اپنے ملک میں شادی بیاہ نہیں ہونے دیتا تھا، کہتا تھا کہ ہمارے ملک میں شادی بیاہ نہیں ہوگی، ہم سینکوں کو شادی نہیں کرنے دیں گے، ان کے جتنی بھی آبادی تھی مرد کی، وہ انہیں شادی نہیں کرنے دیتا تھا۔ اب اسی علاقہ میں ایک سینٹ ویلنٹائن نام کا ایک پریسٹ تھا۔ اب وہ جب راجا یہ حکم سے دے رہا ہے کہ کوئی شادی نہیں کرا، تو وہ چپکے سے سب کی شادیاں کراتا تھا، یعنی کہ سب کو جوڑتا تھا، محبت کے عہد میں باندھتا تھا، ایک رشتے میں باندھتا تھا، محبت کے رشتے میں باندھتا تھا۔ اب راجا کو یہ بات پتہ لگ گئی کہ چپکے سے یہ سب کی شادیاں کراتا ہے، راجا نے اس کو قید کر لیا۔ اب جب راجا نے اس کو قید کر لیا تو اس کو 14 فروری کو مار دیا۔ تو یہ 14 فروری وہ ویلنٹائن، سینٹ ویلنٹائن مارا تھا، لیکن اصلی ویلنٹائن منا رہے ہیں۔ تو اصلی میں اگر ہم دیکھیں تو ویلنٹائنس ڈے محبت کا دن ہے، لیکن جو نوجوان لڑکے ہم عمر میری جو اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے، یہ رانگ ہے، یہ اصلی معنی میں یہ رانگ ہے، یہ غلط ہے۔ حقیقت میں محبت، ہم نے کلام میں سے بڑا محبت صابر ہے، اور محبت مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی۔ اب شیخی کی بات آ گئی نا جب، تو ظاہر سی بات ہے محبت کو باہر لے کے جانا، 4 لوگوں سے بکھانا تے شیخی نہیں تو کی ہے؟ محبت ایک شیخی ہے، محبت مہربان محبت ہے۔ ہم کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے منانا غلط ہے، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہاں غلط ہے، لیکن اگر ہم ویلنٹائن ڈے کے ترجمے پہ جاتے ہیں، یہ ایک محبت ہے۔ اگر وہ کلام کہتا ہے کہ اگر میں فرشتوں سے زبانیں بولوں اور میں اپنے بھائی سے محبت، ابھی بات آ گئی محبت کی، ابھی ادھر بھائی کا بھی ذکر آ گیا، اب بیوی کی طرف چلے جاتے ہیں تو کلام یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی بیوی سے اپنی مانت کیا رکھ، تو بیوی دی محبت آ گئی۔
अब कलाम ये भी कहते हैं अपनी बीवी से नाजुक से रफजान की। अब माँ बाप की मोहब्बत भी आ गई, भाई बहन की मोहब्बत भी आ गई, लेकिन नाजायज फायदा इसका है कि लोगों ने इसका गलत मतलब निकाला है। लोग इसको गलत वे में लेके जा रहे कि मोहब्बत गिफ्ट देना, मोहब्बत असली वैलेंटाइंस डे हर दिन है, ना कि सिर्फ 14 फरवरी को, ना कि उपरीज की तरह। असली मोहब्बत उसी दिन है जो दिन खुदा ने ठहरा दिया, यानी कि इट मीन्स कि आपकी एनिवर्सरी वाला जो और ये मोहब्बत उनके लिए ठीक है जो शादीशुदा है, जो शादीशुदा नहीं है ये उनके लिए गलत है। ये ना समझे कि मैं अगर बोल रहा हूं तो मैं उन सबको ढील दे रहा हूं, ये काम ठीक काम है। ये काम यंगस्टर के लिए, मेरी उम्र के लोगों के लिए तो ये ठीक काम नहीं है। जो हम उम्र है, मेरी उम्र है, याद रखें मोहब्बत बुरी बात नहीं है, क्योंकि कलाम कहता है बाप ने ऐसी मोहब्बत की और अपना बेटा बख्श दिया। ये मोहब्बत है क्योंकि बाप मोहब्बत है, बेटा आया उसने भी मोहब्बत दिखाई, वो भी एक मोहब्बत है। कुछ का फल में से भी क्या है, एक मोहब्बत है। पहला फल क्या है, मोहब्बत दायमी है, मोहब्बत दायमी है। और जो मोहब्बत है वो हम में नहीं, और हंसी चल वैलेंटाइन मनाना, तो ये वो वैलेंटाइन है। अगर हम देखें बाइबल में से, तो जब इजहाक की बीवी लेने के लिए गए थे इब्राहिम ने, अब देखें ये वो मोहब्बत की बात आ रही है जो रिबका इजहाक की दुल्हन बनी थी। इजहाक भी काफी टाइम तक रहता गया, वो मतलब एक बंदा था कि सोच रहा होगा कि मेरे को अभी तक दुल्हन ही नहीं मिल रही, मेरी उम्र इतनी बढ़ गई 40 से भी अब होगी, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, मेरी दुल्हन ही नहीं लगी। तो उसके बाप इब्राहिम ने भेजा कि जा इसके लिए दुल्हन लेके आ। जब वो गया तो कोई किसी को वाकया ये याद है कि दुल्हन उसको कहां पर मिली? कुएं पे। इट मीन्स के पानी के पास उसको दुल्हन मिली, कुएं के पास वो पानी भरेगी, पिलाएगी। इट मीन्स अब इसमें से एक पॉइंट को हम नोट करते, पानी से उसको दुल्हन का अंदाजा हो गया कि अगर वो पानी भरेगी तो यही दुल्हन है, ये पानी भरेगी तो क्या यही दुल्हन है। और अगर हम नए अहदनामे की तरफ गौर करें तो हमें भी यीशु की मोहब्बत की तरफ जाने से पहले हमें पानी में से होकर गुजरना पड़ता है। आमीन, हालेलुया। मसीह की मोहब्बत में इंटर होने से पहले हमें उस पानी का सामना करते हैं। तो हमें क्या तशबीह दी गई है, हम क्या है मसीह की दुल्हने, हम उसको दुल्हा कहते हैं, हम उसकी दुल्हन हैं। तो दुल्हनों को मतलब कि इजहाक की भी दुल्हन एक पानी को फेस करके गई, हमें भी खुदा से मिलना है पानी को फेस करके, पानी में से होके गुजरेंगे तो बाप की मोहब्बत और बाप की दुल्हन हम बन जाएंगे। तो इट मीन्स के खुदा राइट है, खुदा मोहब्बत है। मैं ये नहीं कह रहा, काफी इस पे सरमन्स होंगे कि मोहब्बत वैलेंटाइंस ये नहीं है, वैलेंटाइंस वो है, वैलेंटाइंस ये, जो भी है ये यंगस्टर के लिए इज नॉट अलाउ, क्योंकि ये खतरा भी है। असली मोहब्बत वो है जो मेहरबान है, जो शेखी नहीं मारती। तो हम इसमें से कुछ 5 पॉइंट को निकालते हैं। पहला पॉइंट, साबिर और बरकत। मोहब्बत सब्र और देर तक कायम रहती है। असली मोहब्बत सब्र करती है और देर तक कायम रहती है। अब जो ये दिन की मोहब्बत है ना, 14 फरवरी की मोहब्बत है जो यंगस्टर की, ये याद रखें, ये कोई सच्ची मोहब्बत नहीं है, ये कामिल मोहब्बत नहीं है। क्योंकि कामिल मोहब्बत एक पोशीदगी में नजर आती है, कामिल मोहब्बत जाहिरी तौर पर नजर नहीं आती। कामिल मोहब्बत एक हाइड रहती है, वो नाजिबा काम नहीं करती। याद रखें, नाजिबा काम वो हम अपनी मोहब्बत को लोगों को शो ऑफ कर रहे हैं कि ये मेरी मोहब्बत है, इंट्रोड्यूस करवाते कि ये इंट्रोड्यूस एक अलग शॉट पर। एक हम वैलेंटाइंस को लेके हम घूमते गलियों मोहल्लों में, हम लेके जाते पार्क्स में, तो ये रॉन्ग है। कलाम हमें ऐसी मोहब्बत की नहीं कह रहा, कलाम हमें पोशीदगी की मोहब्बत कह रहा है कि कर मोहब्बत बेटा, अगर तू कर भी रहा है।
تو یاد رکھیں اگر ویلنٹائن ڈے محبت کا تھا تو وہ باپ کی محبت جو ہم میں آئی، اور اگر ہم محبت کر رہے ہیں تو اسے پوشیدگی میں لے گئے، اسے پوشیدگی میں اپنے ماں باپ کے انڈر، ایک خادم کے انڈر اسے مخصوص کرائی جائے. یہ وہ محبت ہے، یہ وہ محبت نہیں جو شیخی مارے. جیسے کلام کہہ رہا نا، محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی. اب آپ کو پتا ہے نازیبا کام، میں اس چیز کو ایک چیز کو بتا رہا تھا. اصلی محبت ایک سیب کی مانند ہے. ریلیشن شپ لائک ایپل. غور فرمائیں، محبت ایک سیب کی مانند ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک سیب کو ایک مہینہ رکھ لیں اور اس کے بعد کھا لیں تو آپ کھا لیں گے؟ ایک صحیح سیب کو ہم ایک مہینے بعد دیکھیں گے تو وہ ہمیں کیا ملے گا؟ صحیح ملے گا یار. ہم اگر ایک فریج میں ایک سیب کو رکھ دیں گے تو وہ ہمیں صحیح سیب ہمیں صحیح ملے گا. لیکن اگر ہم ایک ایپل کو ہم اگر ایک بائٹ کر دیں، ایک مہینہ رکھ دیں اور مہینے بعد ہم اس کو کھائیں، اس میں کیا آ جائے گا؟ بدبو. اور یہی ہم صحیح سیب رکھ دیں تو ہم مہینے بعد بھی کیا اسے کریں گے؟ کھا لیں گے. ایک سیب کو اگر ہم ایک بائٹ کر کے ہم اس کو ایک فریج میں رکھ دیں، کہیں پہ بھی رکھ دیں، اس کو ایک مہینے بعد جا کے ہم دیکھیں گے اس کو وہ پیلا پیلا پڑ جائے گا، اس میں کیڑے پڑ سکتے، وہ داغی ہو جائے گا، ہمارا کھانے کا دل نہیں کرے گا. اور اگر ہم صحیح سیب کو ایک مہینہ فریج میں رکھ دیں اور ایک مہینے بعد بھی نکالیں گے تو وہ ہمیں صحیح کا صحیح ملے گا. تو محبت یہ ہے، اصلی محبت یہ ہے. بات سمجھ میں نہیں، کہندے نے سمجھدار ہے اشارہ کافی ہوتا ہے. اصلی محبت ایک سیب کی مانند ہے، کیونکہ ہمیں بھوک نہیں اور ہم بائٹ کر لیں، ہمارا وقت نہیں اور ہم بائٹ کر لیں اور وہ خراب ہو جائے. تو محبت یہ نہیں ہے. محبت وہ ہے جو آپ فریج میں بھی رکھ دو اور مہینے بعد بھی نکالو گے آپ کو ویسی کی ویسی ملے گی محبت. اصلی محبت یہ ہے. اور محبت ہمیں بھی سچی محبت میں آنے سے پہلے پانی سے گزرنا ہوتا ہے. جیسے اظہار میں نے ابھی بتایا، ہمیں بھی سچی محبت میں سے گزرنے سے پہلے، ہمیں اصلی محبت میں داخل ہونے سے پہلے پانی کا سہارا لینا پڑتا ہے. پانی سے اس کی دلہن جاتی ہے، تیار ہو کے گزرتی ہے پانی میں سے، تب جا کے ہم باپ کی دلہن میں ٹھہرتے. ادروائز ہم دلہن نہیں. ادروائز یہ وہ محبت ہم میں ابھی تک آئی نہیں ہے. ہم کافی دفعہ سوچتے ہیں محبت 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 اور ہم برداشت نہیں کرتے تو یہ محبت محبت نہیں. ہم محبت محبت کہتے ہیں اور ہم شیخی مارتے ہیں تو یہ محبت محبت نہیں. ہم محبت محبت کہتے ہیں اور ہم مہربانی نہیں کرتے تو یہ محبت محبت نہیں. اگر ہم محبت محبت کہتے ہیں اور ہم اپنی محبت سے جھوٹ بولتے تو یہ محبت محبت نہیں. کیونکہ خدا کی محبت ہمیں جھوٹ بولنا نہیں سکھاتی. خدا کی محبت ہمیں حسد کرنا نہیں سکھاتی. خدا کی محبت ہمیں نازیبا کام کرنا نہیں سکھاتی. خدا کی محبت ہمیں پوشیدگی سکھاتی ہے. خدا کی محبت ہمیں ایک چیز کے انڈر رہنا سکھاتی ہے، نہ کہ ہمیں اپنی محبت کو شو آف کرنا سکھاتی ہے. جیسے میں نے سچا بتایا کہ اصلی محبت انتظار کرتی ہے، ویٹ کرتی ہے. جیسے کہ اظہار نے کیا اپنی محبت کے لیے، جو ہم یہ آج کے دن کو جیسے پچھلے دن گزرا ہم اس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کچھ لوگ اس کو جوش و خروش سے منا رہے ہیں اور جگہ بہ جگہ لے کے جا رہے ہیں. تو ان سے گزارش ہے جو دیکھ رہے ہیں کہ پراوا نہ کرو. یہ ہمیں ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے، نہ کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کے جاتا ہے. اگر آپ کو اتنی محبت کی آخر آئی ہے تو اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ، وہ آپ کو اصلی محبت کا راستہ دکھائیں گے. آپ اپنے خدا کے پاس آؤ، آپ کو میرا خدا آپ کو اصلی محبت کی پہچان بتائے گا کہ محبت ہے کیا، محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے، محبت کیا کچھ نہیں کر جاتی. محبت تو ایسی محبت ہے کہ اس کو مار بھی دو گے وہ محبت تو نہیں کرے گی، کہ وہ محبت برداشت بھی کرتی ہے. محبت 100 کاموں کو سیکریفائس کر جاتی ہے. ہم وہی بات بتا رہے ہیں نا،
हम फरिश्तों से जुबानी बोले और क्या अपने भाई से क्या ना रखे, मोहब्बत नहीं रखे, तो हम क्या हैं? ठनठनाता पीतल और झंझनाती छाछ। मैं इसलिए रुक रुक के बोलूं ताकि मैं आपको देख रहा हूं कि आप मेरे साथ हो भी या नहीं। ठनठनाता पीतल और झंझनाती छाछ, मोहब्बत ऐसी है। अगर हम मोहब्बत 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 बड़ी मोहब्बत कह रहे हैं, हम इससे मोहब्बत करते हैं, हम इससे बहुत मोहब्बत करते हैं, हद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और वो बंदा कहे मेरे 500 दे, मना कर दे यार आज नहीं नहीं, मोहब्बत। याद रखिए मोहब्बत लेन देन नहीं, मोहब्बत लेन देन नहीं। सच्ची मोहब्बत आपको नजर नहीं आएगी। आज आप बात को लिख ले कि ट्रू लव, सच्ची मोहब्बत आपको कभी नजर नहीं आएगी फेस पर, कभी जिंदगी में नजर नहीं आएगी, लेकिन वो आपकी बैकअप पे काम कर रही हो, आपको पता भी नहीं होगा, वो आपके लिए काम हो जाएगा, आपको सोच में भी नहीं होगा, और सच्ची मोहब्बत ही काम कर देती है। मोहब्बत ऐसी है, क्योंकि बाप हमसे मोहब्बत करता था ना, हम बदी में थे तभी अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया। तो बाप ने नहीं बताया, बाप ने जाहिर होकर नहीं बताया कि मैं अपना बेटा भेजने लगा, सब तैयार हो जाओ। ये होती है सच्ची मोहब्बत, जो पोशीदगी में आती है, जो खुदा मोहब्बत करता है और बताता भी नहीं, जताता भी नहीं मोहब्बत। याद रखे सच्ची मोहब्बत कभी जताएगी नहीं कि वो मोहब्बत है, या मैं मोहब्बत से तेरे लिए आज जय लेके आया, अगले दिन मैं आपको उसको 100 बारी सुना दो, क्या मैं तेरे वास्ते वो लेके आया सा, तू वेख्या नहीं। मोहब्बत शिखी नहीं मांगती, मोहब्बत बताते नहीं है, जाहिर नहीं करती कि मेरी ये मोहब्बत है, मेरी ये मोहब्बत है, मैंने ये किया ये किया ये किया ये किया। मोहब्बत कर देती है और पता भी नहीं लगता। मोहब्बत वो सब कुछ काम कर देती है जो हमें पता भी नहीं लगता। इज्जत, मोहब्बत दूसरों की इज्जत करती है, घमंड और नफरत नहीं करती। असली मोहब्बत रिस्पेक्ट करती है, ऑनर करती है। याद रखें, अगर आपकी मोहब्बत में आपकी रिस्पेक्ट नहीं, आपका ऑनर नहीं, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बहुत ही बड़ा हो, अगर वो मोहब्बत में फर्माबरदारी ने इज्जत नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, तो वो मोहब्बत नहीं। याद रखें, अगर मोहब्बत सख्त हड्डी को भी तोड़ देती है, आपकी एक मोहब्बत का अल्फाज बोला हुआ सख्त हड्डी को भी तोड़ देगा। वो जितना बड़ा गुस्से में होगा, वो आपकी मोहब्बत देख के नरम मिजाजी में आ जाएगा। एक एग्जांपल मैं बताता हूं, दो हस्बैंड वाइफ अगर आपस में लड़ रहे हो, दोनों आपस में बहुत बेइंतहा लड़ रहे हैं भाई, लड़ रहे, अब कोई नहीं है घर पे, तो छुड़ाएगा कौन? कोई भी नहीं। अगर यही हम अक्लमंदी का तकाजा करें, हम अपने मर्द को या अपनी औरत को कहें मोहब्बत से, चल छोड़ लेंगे, सॉरी। और देखे, बड़ी लड़ाई माफ की जाती है एक इतने से वर्ड से, सॉरी से। आप छोटे बन जाए, आप रिस्पेक्ट कर ले, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, सॉरी बोल ले, एक्सक्यूज कर ले। हम बड़े काम करते हैं, सिर्फ हम अपने इतने से बड़ से सॉरी से मार खा जाते हैं कि हमने सॉरी नहीं बोलना ताकि हमारी अना गिर जाएगी, ताकि हमारे जो रुतबा है वो गिर जाएगा। तो भाई आपका रुतबा कुछ भी नहीं है, जो मेरे मसीह का रुतबा था उससे बढ़कर आपका रुतबा कुछ भी नहीं है। अगर आप मोहब्बत करते हैं, अगर आप लव करते हैं, तो आप उससे बर्दाश्त कर लें, उसको सॉरी कर दें। अगर आप उसे खोने से डरते हैं तो याद रखें आप उसको सॉरी कर दें, लड़े नहीं। गुस्से में कह रहा है मुझे एक रोटी दे, आप उसको 3 4 5 दे दो, सही वाली मोहब्बत दिखा दो। तो याद रखें, मोहब्बत ऐसी नहीं कि झगड़ा करें, मोहब्बत सब कुछ बात आ गई सह लेती है। मोहब्बत, ट्रू मोहब्बत, बाप ने जब बेटे को जाहिर किया, उसने जब हमसे मोहब्बत की, उसने मेरे आके जिताया कि मैं ताड़े ना मोहब्बत करना भरा, मैं ताड़े वास्ते जान देनी है। पोशीदगी मेरा सहता रहा, वो गीत भी है, दुख सहता रहा जान पे किरदार का सावत,
कई बार गिरा रहा मैं कलवर का मुसाफिर। अरे बड़ा मजे का गीत है। वो दर्द का नक्शा था जो देखा नहीं जाए। याद रखें, आपकी जिंदगी एक नक्शे की तरह है। आपकी जिंदगी एक नक्शे की तरह, एक ट्रैक की तरह, वो आपको सफर में से गुजरना है तो गुजरना है। आज जो नौजवान यूथ आज जो 14 फरवरी को मना रही है, तो उनसे गुजारिश है कि उनको ये सफर से गुजरना है, लेकिन एक वक्त पर। याद रखें, इजहाक को उससे पहले रिबका नहीं मिली थी, उसको एक वक्त था, तो तुम्हारा भी एक वक्त है। खुदा कभी भी वक्त से पहले उसे चीज नहीं देता। हर एक चीज का वक्त है। अगर आपका वक्त नहीं और आप मोहब्बत करने चढ़े हो, तो ये मोहब्बत नहीं। तुम मोहब्बत कर रहे हो तो बादो गाला काट रहे हो, क्या मोहब्बत नहीं? ये मोहब्बत नहीं। सैक्रिफाइस करना, सह लेना। मैं ये मानता हूं, अगर आपने मोहब्बत में सह लिया तो मैं कहता हूं वाह क्या बात है। मसीह की मोहब्बत, याद रखें, मसीह की मोहब्बत जाहिरी तौर पर आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन वो पोशीदगी में सब काम करेगी। वो मोहब्बत सब कुछ चीजों को ठीक कर देगी। वो मोहब्बत सब काम बना देगी, लेकिन कभी जाहिर नहीं करेगी कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूं। और याद रखिए, ये सिर्फ 14 फरवरी सिर्फ एक लड़का लड़की का नहीं है, ये बाप बेटे का भी है, माँ बाप का भी है, भाई बहन का भी है, मियां बीवी का भी है, दोस्त का भी है। ये सिर्फ एक मर्द और औरत का नहीं है, क्योंकि हम इसको मोहब्बत के नाम से तशबीह देते हैं ना, तो ये मोहब्बत भी सब है। क्योंकि बाप ने सिर्फ मर्दों से मोहब्बत नहीं रखी थी। अगर हम इसे बाइबल से देखें ना, तो बाप ने मर्दों से मोहब्बत नहीं रखी थी, या सिर्फ औरतों से ही मोहब्बत नहीं रखी थी, बल्कि दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। याद रखें, मोहब्बत एक बख्शिश भी है। आप चीजों को बख्श रहे हैं। बख्शना यानी कि ये बख्शना नहीं कि हमने चीज दी, चल छड़ रहन दे, मैं तेनू दान दे छड़ी, ये वो बख्शना नहीं। माफी, माफ करना। याद रखें, आपकी बड़ी लड़ाई एक छोटे वर्ड से सब कुछ ठीक हो सकती है। हमेशा खुशी, मोहब्बत हमेशा खुशी बांटती है, कभी भी जलन या नफरत नहीं करती। ये बहुत बड़ा कठिन मामला है। मोहब्बत जलन नहीं करती। आज की मोहब्बत में जलन भी है, आज की मोहब्बत में शीखी भी और नफरत भी है। खुशी तो मोहब्बत में नजर ही नहीं आती ना। मोहब्बत में लड़ाई झगड़े तफरीके, बदगुमानियां, झूठी गवाहियां, ये सब मोहब्बत में ही नजर आते। कि मैं आजकल एक वीडियो मेरे सामने आई, तो वीडियो कुछ इस तरह की थी कि जो सच्ची मोहब्बत होती है वो गालियां भी देती है। मैं देख के हंस पड़ा कि सच्ची मोहब्बत गालियां देती है। हाँ, सच्ची मोहब्बत गालियां भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बाप की मोहब्बत हमें गालियां देना नहीं सिखाते। कहते हैं मैं बड़े उसको देख रहा, तो कहता है एक भाई कहता है जो सच्ची मोहब्बत होगी वो आपको मारेगी भी, वो आपको गालियां भी देगी। मैं कह रही कैसी केड़ी मोहब्बत है जड़ी मार दी गई, गाला भी काट दी है, मैनू दसो। तो याद रखो, मोहब्बत हमें गालियां देना, नफरत करना नहीं सिखाते, बल्कि मोहब्बत हमें खुशी बांटना सिखाती है, खुश करना सिखाती है। हमें मोहब्बत हमें हंसना सिखाती है, एक दूसरे के साथ अच्छे बर्ताव से खुश रहना सिखाती है। ये नहीं सिखाती कि आप उसे मारो, झगड़ो, लड़ो, पीटो, कुछ करो। अगर आप ऐसी मोहब्बत कर रहे हैं तो ये खुदा की मोहब्बत नहीं है, बल्कि शैतान की मोहब्बत है जो आपसे करवा रहा है। सच्चाई और वफादारी, मोहब्बत हमेशा सच्चाई और वफादारी से साथ कायम रहती है। याद रखें, अब सच्चाई से जो साथ रहती है मोहब्बत, अय्यूब की जो बीवी थी, अगर मोहब्बत की बात करें, अय्यूब की जो बीवी थी, अय्यूब पे बड़ा जुल्म आया, उसका सब कुछ ले लिया गया, सब कुछ छीन लिया गया। तो मुझे नहीं कहीं नजर आया कि अय्यूब की बीवी ने उसका साथ छोड़ दिया। उसके साथ रही थी, देखती भी थी, बोली भी, लेकिन बीच साथ नहीं छोड़ा।
सच्ची मोहब्बत कभी साथ नहीं छोड़ती, आधे रास्ते में छोड़ नहीं जाती मोहब्बत। याद रखें, अगर वो मोहब्बत आपको आधे रास्ते में छोड़ के जा रही है तो वो मोहब्बत नहीं। मोहब्बत के भी पहलू हैं, मोहब्बत के भी रंग हैं। उसको झांचें, उसको परखें, उसको देखें कि यह सच्ची मोहब्बत है, ये ट्रू लव है। तो याद रखें, अगर वो आपसे झूठ बोल रहा है, खेमा मजाक ही कीता सी, तो ये वो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत आपको साथ रहेगी, देखेगी कि ये चीजें गलत है, गलत हो रही है, लेकिन कि मोहब्बत हमें ऐसा काम करना नहीं सिखाती। कई चीजें हम आगे बढ़ते हैं। और कभी गुस्सा या नफरत से नहीं चलती, बल्कि दीनदारी तहम्मुल से बेहतरी मोहब्बत है। दीनदारी मोहब्बत, जो सच्ची मोहब्बत है, ये आपको कभी भी मोहब्बत के रंग नहीं नजर आएंगे। मोहब्बत का एक ही रंग है जो बाप ने हमसे कर दी, खुदा ने जो हमें बख्शिश दे दी। ये सिर्फ एक ही ट्रू लव है, इसके ना बाद कोई था ना इसके पहले कोई है। बाप ने हमसे जो मोहब्बत की, बेटे के वसीला बेटे ने जो हमसे मोहब्बत की अपनी जान देकर, तो इससे बेहतर मैं नहीं मानता कि कोई आगे मोहब्बत है या इसके पीछे मोहब्बत होगी। तो मैं आज ही आपसे कह रहा हूं कि अगर आप इस 14 फरवरी को मना रहे हैं तो सिर्फ इस बात से मनाएं कि मैं अपने आसमानी बाप के साथ, अपने जलाली बाप के साथ इस मोहब्बत को मना रही हूं या मना रहा हूं। मैंने तो मेरे थंबनेल के वो टाइटल पे, पोस्टर पे भी मैंने लिखा, वी आर सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइन डे विद जीसस। मैंने तो ये भी लिखा है क्योंकि हमें दुनिया से मोहब्बत नहीं करनी। दुनिया वाली मोहब्बत एक अलग ट्रैक में है, लेकिन हमने बाप वाली मोहब्बत करनी है। एक दूसरे को सहना है, बर्दाश्त करनी है, सैक्रिफाइस करना है। अगर हम ये नहीं कर सकते तो आप बाप की मोहब्बत में दाखिल नहीं हो सकते। याद रखें, मोहब्बत आपको फर्मा बरदारी सिखाती है। अगर आपके अंदर फर्मा बरदारी नहीं और आप मोहब्बत करने चले हो तो याद रखें, ये मोहब्बत नहीं। एक बात एक सोचने की है, इब्राहिम और सारा के ऊपर, ये दोनों जब शादी में थे, एक बंधन में बंधे हुए थे, तो सारा बांझ थी, उसकी औलाद नहीं होती थी। इब्राहिम ने नहीं छोड़ दिया उसको आधे रास्ते में कि सारा तेरे बेटा नहीं हो रहा, मैं तुझे छोड़ रहा हूं, मैं तुझे आधे रास्ते में छोड़ के मैं किसी और से शादी कर लेता हूं। उसे छोड़ा नहीं, बल्कि वो उसका सहारा बना, उसको सहारा दिया, उसको अपने साथ रखा। उसको पता था कि बाप की मेरे लिए यही मर्जी है तो वो यही मर्जी रहेगी, लेकिन मेरा बाप जो मुझे बांध दिया, मेरा आसमानी बाप ने, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो सच्ची मोहब्बत ये काम करती है, कभी भी आधे रास्ते में आपको नहीं छोड़ते। जो आधे रास्ते में छोड़ जाए वो सच्ची मोहब्बत नहीं, वो फिर दोगली मोहब्बत है, दोगली मोहब्बत। और बाप हमें दोगली मोहब्बत नहीं सिखाता, बाप हमें सच्ची मोहब्बत सिखाता है, जो अपने सलीब पर हमें जान देकर अपनी हमें मोहब्बत दी। याद रखें, मसीह की हम अक्सर मोहब्बत का एक फ्लैग बनाते हैं रेड कलर का, तो याद रखें लहू भी रेड कलर का ही है। जैसे हाँ, लहू भी रेड कलर का ही है। जो लाल रंग से मोहब्बत रंग दी जाए वही असली मोहब्बत है, और वो रंग मेरे मसीह का रंग है। उसके लहू से जो मोहब्बत दे दी गया, असली मोहब्बत वो है, ना उसके आगे मोहब्बत ना उसके पीछे मोहब्बत। मोहब्बत की डेफिनेशन उससे शुरू हुई, उस पर खत्म हुई, ना उसके बाद कोई मोहब्बत थी ना उसके पहले कोई मोहब्बत है। फर्स्ट और लास्ट एक ही मोहब्बत है, आसमानी मोहब्बत। आमीन, हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला, आज के मैसेज के वसीला हमें मोहब्बत की डेफिनेशन तो पता लग गई होगी कि हमने क्या काम करना। नाजिबा काम नहीं करती मोहब्बत, शेखी नहीं मारती, जरा वैलेंटाइन है जाहिरी तौर पे नहीं दसदी, मोहब्बत कर दी है लेकिन फूलती नहीं, मोहब्बत झुंझलाती नहीं, सह जाती है, बर्दाश्त करती है। तो आज अगर हम अपने हमारे दिलों में ये सब चीजें नहीं और हम मोहब्बत करने चढ़े तो फिर ये मोहब्बत है। तो मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला, आज के मैसेज के वसीला हमें मसीह की मोहब्बत जो हमें आ गई, हम वो जाहिर करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और अपने कदमों पर खड़े रहें।